Okay, so students, today we will talk about law of supply. Here, in this chapter, we will firstly talk about the meaning of supply, which is what does it mean, supply मतलब क्या होता है, दूसरा individual supply, तीसरा market supply और stock का supply versus stock. इस stock और supply में क्या difference है? So first, let's talk about what is supply. Supply क्या होती है? Usually, जब हम demand की बात कर रहे थे, we were talking about from the side of consumers. Here, who makes the supply? Supply is made by the producers. So here we will talk about from the behalf of producers, not from the behalf of consumers. Supply, what does it mean exactly? Supply is the quantity of a commodity. Supply is the quantity of a commodity which is produced or sold by or willing to sell by the producers. If we are talking about the definition, supply का definition क्या है? तो supply का definition क्या है? Supply is the quantity of a commodity. किसी commodity की क्या है? Quantity है. Which producer and sellers are willing to produce or offer to sell at particular price in a given period of time. So what does it mean? Supply means the supply of a commodity is the quantity of the commodity which producer and seller are willing to produce or offer to sell to the consumer at particular price in a given period of time. तीन चीजें निकल कर आती हैं इस डिफिनेशन से. कौन कौन चीजें? फर्स्ट इज willingness to produce or sell. willingness means desire to produce. प्रोड्यूसर कितना डिजायर करता है प्रोड्यूस करने के लिए. फर्स्ट थिंग इज in the definition of supply we must consider first thing, that is desire of production or desire of sale. Secondly, the particular price of the product. एक पर्टिकुलर प्राइस पे डिजायर करते हैं किसके लिए? प्रोड्यूस करने के लिए, सेल करने के लिए. किस चीज पर? दैट इज ऑन फॉर अ particular price. So supply is always concerned with a particular price of the commodity. Third thing is particular period of time. Supply is always represented in a particular period of time. It may be 1 week, 1 month or 1 year, whichever time you can take. So supply is always concerned with three things. First is to the desire of production or desire of sale by the producer or seller. Secondly, the particular price on which producer or seller want to produce or offer to sell. And third thing, that is time period. Means supply is always represented in a time period, particular time period. Here we find two types of supply: individual supply and market supply. Individual supply is concerned, or individual supply को क्या कह सकते हैं? Individual supply is the quantity of a commodity. Is a quantity of a commodity which single firm याद रखिएगा, single firm is willing to produce or offer to sell at particular price in a given period of time. Definition वही है, सिर्फ यहाँ पर क्या किया है? सिंगल फर्म की बात हो रही है. Suppose that firm A, फर्म का नाम क्या है? फर्म A है. फर्म A is producing 10,000 यूनिट. कितनी यूनिट? 10,000 यूनिट ऑफ कमोडिटी. इसी कमोडिटी के जो फर्म ये है वो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करना चाहती है. कब? जब प्राइस हो कितनी? 50 रुपीज पर यूनिट हो. कितने दिन में? 1 महीने के लिए. ठीक है. दैट इज नोन एज फर्म और इंडिविजुअल सप्लाई. द quantity of a commodity which a firm is willing to produce or offer to sell at particular price in a given period of time, that is known as individual supply. Market supply, the definition will be same, but when we talk about market, we are talking about all the firm. So the definition will be of market supply, the quantity of a commodity which all the firms, कितने फर्म? सारी, जितनी फर्म है सारी फर्म. सपोज दैट फर्म ए बी सी, फर्म ए बी सी डी एंड सो ऑन, जितनी फर्म सारी फर्म
सप्लाई को क्या कहेंगे, मार्केट सप्लाई। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आप, द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which all the firms are willing to produce or offer to sell at particular price in a given period of time, that is known as market supply। उसको क्या कहते हैं, मार्केट सप्लाई कहते हैं। क्लियर। हम तीसरी बात कर लेते हैं कि स्टॉक और सप्लाई में क्या अंतर है। स्टॉक क्या है, सप्लाई क्या है। यूजुअली होता क्या है, वी कंसीडर स्टॉक एज सप्लाई, मींस द गुड्स व्हिच हैज बीन प्रोड्यूस्ड, उसको क्या बोलते हैं, वही सप्लाई है और वही क्या है, हमारा स्टॉक। हम यहां पर करेंगे क्या डिफरेंस है दोनों में। स्टॉक मींस द गुड्स व्हिच इज ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर, जो भी प्रोडक्शन हो चुका है सारा क्या है, स्टॉक है। बट सेलर में भी नॉट बी विलिंग टू सेल इट। मान लो हमने प्रोड्यूस किया, सपोज दैट फर्म ने प्रोड्यूस किया 10,000 यूनिट को, 50 रुपये था, तो फर्म ने प्रोड्यूस कर दिया कितना, 10,000 यूनिट 50 रुपये के प्राइस पर। अभी 40 रुपये हो गई प्राइस। फर्म क्या करेगा, क्या करेगी, हम 10,000 प्रोड्यूस तो किए हैं लेकिन 10,000 बेच नहीं पाएंगे, कितना बेचेंगे, सिर्फ 5,000 बेच देंगे, 5,000 अभी नहीं बेचेंगे, प्राइस बढ़ेगी तब बेचेंगे। तो सप्लाई कितनी होगी, 5,000। द प्रोडक्शन हैज बीन टेकिंग प्लेस ऑफ 10,000 यूनिट, बट प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल ओनली 5,000 और सपोज दैट 3,000 यूनिट्स, ओनली 3,000 यूनिट्स। सिर्फ कितने सेल करना चाहता है, 3,000 यूनिट को क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है, बेचना चाहता है। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी सप्लाई हो जाएगी, बिकॉज ओनली दिस मच, दिस अमाउंट और दिस क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल, तो क्या है, सप्लाई है। एंड द टोटल क्वांटिटी व्हिच हैज बीन प्रोड्यूस्ड, ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है, उसको क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे। वो क्या होगा, हमारा स्टॉक होगा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट factors which are affecting supply of a commodity. So students, we will talk about the factors which are affecting supply of a commodity। एक commodity की सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। हम कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनपुट प्राइस, रोल ऑफ द प्रोड्यूसर, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन, क्लाइमेट फैक्टर, ट्रांसपोर्टेशन। इतने मैंने टॉपिक को लेकर रखा है, इनके टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आपको कोई और भी टॉपिक्स होगी कमेंट कीजिएगा, हम उसको आपको क्या करेंगे, डिस्क्राइब कर देंगे, समझा देंगे। सबसे पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एज वी नो, अ प्रोड्यूसर वुड लाइक टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर क्वांटिटी व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज हायर एंड विल प्रोड्यूस लो कमोडिटी और लोअर अमाउंट ऑफ द कमोडिटी व्हेन द प्राइस इज लोअर। प्राइस जब कम होगी तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, कम प्रोड्यूस करेगा क्योंकि उसको नॉन प्रॉफिटेबल होगा। और दूसरा क्या है कि अगर कमोडिटी की प्राइस क्या होगी, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा तब। तो पहली चीज़, पहला फैक्टर क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस कितनी है, कैसी है। इफ देयर इज हायर प्राइस ऑफ द कमोडिटी देन द सप्लाई विल बी हायर एंड द प्रोड्यूसर वुड लाइक टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ द कमोडिटी और क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। एंड इफ द प्राइस इज लोअर, प्राइस क्या है, कम है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा भाई, कम प्रोड्यूस करेगा। क्यों, क्योंकि उससे ज़्यादा पैसा मिल नहीं रहा है, तो क्या करेगा, प्रोडक्शन कम करेगा, तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा आ रहा है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। रिलेटेड कमोडिटी में मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट सब्स्टिट्यूट गुड्स। दो गुड्स जो एक दूसरे के क्या है, सब्स्टिट्यूट है। होगा क्या यहाँ पर, इफ द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स विल इंक्रीज, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो रही है, then producer will shift their production from one goods to another goods। वो दूसरे गुड्स को क्या करने लगेंगे, प्रोड्यूस करने लगेंगे। सपोज पेप्सी, कोका कोला, या आप मान लीजिए सब्स्टिट्यूट गुड्स में टी एंड कॉफ़ी। अगर जो प्राइस टी की और कॉफ़ी की, सपोज दैट हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि दोनों 10-10 रुपये हैं प्राइस, कॉफ़ी और टी की 10-10 रुपये एग्जाम्पल लेते हैं। अभी कॉफ़ी की प्राइस बढ़ के क्या हो जाए, 15 रुपये हो जाए, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, ही विल शिफ्ट द प्रोडक्शन फ्रॉम टी टू कॉफ़ी। वो टी को बनाना छोड़ देगा और कॉफ़ी को बनाना शुरू कर देगा। क्यों, बिकॉज कॉफ़ी हैज बिकम मोर प्रॉफिटेबल, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो गई है। तो इसलिए किसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, कॉफ़ी की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करेंगे, कॉफ़ी प्रोड्यूस करेंगे एज इट प्राइस इज रिलेटिवली हायर देन टी। सो द प्रोडक्ट्स आर सप्लाई ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स व्हिच प्राइस हैज बीन राइज अप, हैज बीन इंक्रीज। सप्लाई उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अदर गुड्स जो पहले टी, जो
पहले टी बना रहे थे, टी को बनाना छोड़ के क्या बनाने लगे, कॉफी, तो टी का प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। मीन द सप्लाई ऑफ दैट रिलेटेड गुड्स व्हिच हैज बीन एस्टेब्लिश्ड प्राइस आर फॉल इन प्राइस, द सप्लाई ऑफ दैट विल बी लोअर, उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तीसरी चीज है इनपुट प्राइस। इनपुट प्राइस क्या है, मीन्स अगर जो आप एक कमोडिटी को बना रहे हो तो उस कमोडिटी को बनाने के लिए जो फैक्टर्स यूज होते हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, उनकी प्राइस क्या है। इफ द इनपुट प्राइस इज हायर, इनपुट प्राइस क्या है, हायर है, देन इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सपोज दैट आप एक कोई चीज़ बना रहे हो, उसको बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है और दोनों चीज़ों में से एक चीज़ महंगी हो गई है, तो क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, महंगा बनेगा। क्यों, क्योंकि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, एक चीज़ की दाम क्या हो गया, बढ़ गया, प्राइस इंक्रीज हो गया है। सो नाउ व्हाट विल हैपन इफ द प्राइस इज नॉट इंक्रीजिंग, प्राइस इंक्रीज नहीं कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हैं, किसकी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि इनपुट प्राइसेस जो क्या है इंक्रीज हुई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा एंड इट विल रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोड्यूसर के लिए जो प्रोडक्ट की प्रॉफिट होगी उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। मान लो कोई चीज पहले आपकी बनती थी कितने में, सपोज दैट बनती तैयार होती थी 40 रुपए में, ठीक है, ये क्या था आपकी कॉस्ट थी और उसकी प्राइस क्या थी आपके पास में 50 रुपए थी। कितनी प्रॉफिट आ रही थी आपको, 10 रुपीज की प्रॉफिट आ रही थी। You are earning profit of 10 rupees on each unit of commodity। सारे कमोडिटी पर कितना प्रॉफिट ले रहे थे, 10 रुपये प्रॉफिट ले रहे थे। 40 रुपए की तैयार हो रही थी, 50 रुपये प्राइस थी और प्रॉफिट 10 रुपये अर्न कर ले रहे थे। नाउ द इनपुट कॉस्ट इज इंक्रीज। कोई चीज यहाँ पर हम लोग की एक चीज 25 रुपये मिलती थी और एक चीज 15 रुपये की मिलती थी, जिससे 40 हो रहा था। अब जो 15 वाली चीज थी वो आपको मिल रही 20 की, मतलब 25 + 20, अब कॉस्ट कितनी आ गई आपकी, 45 रुपये। कॉस्ट बढ़ गई, प्राइस क्या है, सेम है। नाउ प्रॉफिट विल फॉल डाउन, प्रॉफिट क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, 10 रुपये से सीधे 5 रुपये, प्रॉफिट क्या हो गई, कम हो गई। आप जानते हैं ये फर्म क्या करती है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए प्रोडक्शन करती है। एंड इफ द इनपुट प्राइस इज राइजिंग देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल आल्सो राइज एंड इन दिस वे द प्रोडक्शन विल बी शॉर्टर। प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस इन लेसर क्वांटिटी, प्रोड्यूसर क्या करेंगे, लेस क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस करेंगे। मीन्स इंक्रीज इन द इनपुट प्राइसेस डिक्रीज द सप्लाई एंड डिक्रीज इन द इनपुट प्राइसेस इंक्रीज द सप्लाई। नेक्स्ट हमारे पास है गोल ऑफ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का गोल क्या है या ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर, फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है। कुछ भी हो सकता है, वो कोई गोल ऑफ प्रोड्यूसर लिख सकते हैं या ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म बोल सकते हैं। एज वी नो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, कभी याद रखिएगा, कभी भी इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का आ जाता है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म, तो आप सीधे सीधे एक स्टेटमेंट लिखिएगा, कोई मार्क्स आप कटने वाले नहीं है, सीधा लिखिएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन और सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म। क्या, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। किसी भी फर्म का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट को बढ़ाना। हम यहाँ जब फर्म की बात कर रहे हैं गोल की, तो 3 तरह के गोल की बात करते हैं या 3 तरह के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन एंड रिस्क मिनिमाइजेशन। रिस्क मिनिमाइजेशन हो सकता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है और सेल्स मैक्सिमाइजेशन। इफ द फर्म हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइज सेल्स, वॉल्यूम ऑफ सेल्स को बढ़ाना चाहती है, देन व्हाट विल हैपन, फर्म प्रोड्यूस more and more amount of commodity or more and more quantity of the commodity and it will offer to sell more quantity in the market. In this way the supply will be higher, supply क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। Profit maximization अगर तो उसका गोल है, then the firm will produce higher quantity of the commodity when the price is higher to earn more profit। वो ज़्यादा कब प्रोड्यूस करेगी, जब प्राइस ज़्यादा होगी, क्योंकि प्रॉफिट करना या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो उस कंडीशन में अगर जो प्राइस कम है तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एज फर्म है द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और तीसरी चीज़ जो है वो रिस्क मिनिमाइजेशन की है। इफ द फर्म क्या करती है, रिस्क मिनिमाइजेशन पर रहती है कि हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, तो वो एक बैलेंस क्वांटिटी में ही क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी। वो सिर्फ उतना प्रोडक्शन करना चाहेगी जितनी कि मार्केट में सेल हो जाए, मार्केट में बेच दिया जाए। सो if the firm have the objective of sales maximization, then the supply of the commodity will be higher. If the firm has the objective of profit maximization and risk minimization, then the supply will be less. Another thing which affect the supply, that is technology.
which type of technology you are using to produce the goods, किस तरह की टेक्नोलॉजी को आप यूज कर रहे हैं प्रोड्यूस करने के लिए, that also play great role to determine the supply of a commodity. Suppose that if you are using a traditional way of production, then it will produce lesser quantity, उसकी प्रोडक्शन क्या होगा, लेस क्वांटिटी में होगा. And if you are using modern technology for the production, then the supply will be higher, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है. Suppose that आप फ्लोर जानते हैं, आटा, पहले उसको चक्की से पीसते थे. ट्रेडिशनल क्या था, वो था कम आटा निकलता था, कम प्रोडक्शन होता था, सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी. लेकिन अभी क्या करते हैं, अभी हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, वी हैव मशीन्स टू मेक फ्लोर फ्रॉम व्हीट. अभी क्या करते हैं, 1 घंटे में बहुत सारा प्रोडक्शन कर सकते हैं. So if the technology is used, traditional technology is used, then the supply will be lower. And if for the manufacturing, the technology or higher technology or modern technology is used for the production, then the supply will be higher. Another thing, government policy. What is the policy of government? Sometimes government makes the restrictive policies for some types of product. अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी उसने बना रखी है कि इसका प्रोडक्शन आपको कम ही रखना है, तो उसकी सप्लाई क्या होगी, कम होगी. जैसे आर्म्स, गन, बंदूक, इनकी सप्लाई सिर्फ कुछ लोगों के पास है, सिर्फ कुछ लोग ही इसको बना सकते हैं, मतलब जो सर्टिफाइड है, तो उसकी क्या है, सप्लाई क्या है, कम है. एंड अदर थिंग, वेयर द गवर्नमेंट हैज नॉट adopted restricted policy, the supply higher. Suppose that बिस्किट, मैगी या फास्ट फूड, कोई इसमें सप्लाई क्या है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी नहीं है. अलॉन्ग विद दैट, टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी कैसे बनाती है, दैट ऑल्सो मैटर्स. टैक्स पॉलिसी हमने गवर्नमेंट पॉलिसी में दोनों को समझा रखा है. एक गवर्नमेंट की अपनी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, प्रोडक्शन पॉलिसी, और दूसरी गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी. 2 पॉलिसी होती है. अगर जो टैक्सेशन पॉलिसी, इफ द गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग ह्यूज टैक्स ऑन द गुड्स टू प्रोड्यूस, देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी हायर एंड द सप्लाई विल बी लोअर. प्रोड्यूस करने पर ज़्यादा टैक्स ले रही है गवर्नमेंट, तो क्या करेगा प्रोड्यूसर, उसको कम प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसमें टैक्स उसको ज़्यादा देना पड़ रहा है. एंड इफ द गवर्नमेंट इज लिबरलाइज टैक्स जो है आपका लिबरलाइज है, कम है या बैलेंस क्वांटिटी में है, तो उसका प्रोडक्शन क्या करेंगे, प्रोड्यूसर ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी वो क्या होगी, कम होगी. अनदर इज क्लाइमेटिक फैक्टर. क्लाइमेटिक फैक्टर यूजुअली इफेक्ट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सप्लाई को इफेक्ट क्या करता है, क्लाइमेटिक फैक्टर करता है. क्लाइमेटिक फैक्टर इफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट क्लोजली. इफ देयर इज गुड वेदर, गुड क्लाइमेटिक फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर agricultural product, then the supply will be good. And if the unfavorable climatic factor is there for the production of a particular agricultural product, then the supply will be lower. Suppose that good weather, good rainfall is good for the production of paddy. अच्छी रेनफॉल होगी, मीन्स फेवरेबल कंडीशन है किसके लिए, पैडी के लिए, तो उसका प्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा. बट लेस रेनफॉल इज अनफेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पैडी. धान की खेती के लिए कम क्या होता है, कम पानी फायदा नहीं करता, अनफेवरेबल है, तो उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ट्रांसपोर्टेशन. अनदर फैक्टर इज ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो इफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ द कम्युनिटी. इफ देयर इज गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल, ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है, मीन्स यू कैन कैरी और यू कैन ब्रिंग द input material by which the product is produced easily and simply, then the supply of the product will be higher. और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जहाँ पर कम है, नहीं है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा. सो टुडे वी डिस्कस अबाउट दीज पॉइंट्स ऑफ विच इफेक्ट द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट. और उसके साथ साथ मैंने बात किया कि सप्लाई क्या होती है, मीनिंग, सप्लाई की डेफिनेशन, इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है, मार्केट सप्लाई क्या होती है, स्टॉक और सप्लाई में क्या डिफरेंस है, और फिर फैक्टर जो उसको सप्लाई को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं.